Study Jones. अरे यार गाइस, चलो ना, आज क्लास का पहला दिन है, मुझे लेट नहीं होना। हाँ भाई हाँ, आ रहे हैं। एक काम कर, तू आगे जा, हम पीछे से आते हैं। बच्चों, सेटल डाउन। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रोफेसर एच और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी सीएससी फाउंडेशन बैच ऑफ 2020 में। बिफोर वी बिगिन आवर पोर्शन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू टुडेज टॉपिक, simplified UPSC syllabus breakdown and book list. So the UPSC Civil Services examination is divided into two stages, prelims and mains. Let's look at prelims. So the prelims paper is objective in nature, which means it is MCQ based. It consists of two main papers. Paper 1, history, geography, polity, economy, ecology and general sciences with special emphasis on current events. इसका मतलब है ये सारे सब्जेक्ट्स के स्टैटिक पोर्शन तो आपको पढ़ने ही हैं, बट करंट अफेयर्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है. Then we have paper 2, which is CSAT. The full form of CSAT is Civil Services Aptitude Test. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Both of these papers consist of 400 marks. This is a screening test, which means that mains can only be given after you pass prelims. One thing to note is that prelims do not affect the final order of merit, which means जो आपका ऑल इंडिया रैंक होता है, जो आपको IAS, IPS, IFS etc. पोस्ट जिस रैंक पे मिलती है वो प्रिलिम्स के वजह से नहीं मिलती, बिकॉज प्रिलिम्स डज नॉट अफेक्ट मेरिट. इट इज़ बेसिकली अ पेपर विच यू जस्ट हैव टू पास in order to get to the next step. Let's look at the detailed breakdown of the prelims paper 1. You have current events of national and international importance. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि current affairs पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. You have history of India and Indian national movement, Indian and the world geography, which consists of physical, social, economic geography of India and the world, Indian polity and governance के अंदर constitution, political system, especially panchayati raj, public policy, rights issues, etc. Then in economics and social development, you have sustainable development goals, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. Under general issues on environment and ecology, you have biodiversity and climate change. And finally, general science, which is just 10th standard level. You don't need any specialized knowledge of the same. You don't need 11th, 12th knowledge necessarily for this part. Let's look at the detailed breakdown of the prelims paper 2, which is also called as CSAT. In civil services aptitude test, you have comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, which means numbers and their relations, order of magnitude, etc. All of this is just class 10 level. And data interpretation. Now this data interpretation is not MBA level data interpretation. It's just charts, graph, tables, data sufficiency, all just belonging to class 10 level. Moving on. Once, let's say you passed the prelims. You move on to the next stage, which is called as the mains. Let's have an overview of the mains and then I will explain the detailed syllabus breakdown of the mains later. So the UPSC mains consist of 9 papers, out of which 2 are just qualifying papers of 300 marks each, which means you have to qualify them in order to move on to the next step. The 2 qualifying papers are any Indian language. Most of the people in India choose Hindi, but you can choose any of the Indian languages that are mentioned in the 8th schedule. Then you have the English language paper. And after that, you have 7 papers which affect the ranking, which are of 250 marks each. Mains का जो part होता है उसमें total 7 पेपर होते हैं. The first paper is called the essay paper. इसमें basically 2 आपको essay लिखने होते हैं of 125 marks each. फिर आता है paper 2 जिसे हम GS1 भी बोलते हैं. GS1 के अंदर Indian culture and heritage, history of India and the world, geography of India and the world और Indian society, ये subjects आते हैं. फिर आता है पेपर 3.
पेपर 3 को हम GS2 बोलते हैं। GS2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब्जेक्ट्स आते हैं। ये सब्जेक्ट्स बहुत डायनामिक होते हैं। दो टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक सब्जेक्ट्स आर दोस विच डू नॉट चेंज विद टाइम एंड डायनामिक सब्जेक्ट्स आर दोस विच हैव करंट अफेयर्स एट देयर कोर। तो जब भी आप GS2 पढ़ रहे हो तो आप खास करके ध्यान दीजिए कि आप करंट अफेयर्स पे जोर दे रहे हो। फिर आता है पेपर 4। पेपर 4 को GS3 भी बोलते हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आता है पेपर 5 जिसे GS4 बोला जाता है और उसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड आता है। ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी फिलोसफी बेस्ड। दे बेसिकली टेस्ट द मॉरल फाउंडेशन ऑफ यू एज अ पर्सन। फिर आता है पेपर 6। पेपर 6 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 होता है और पेपर 7 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2 होता है। आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब बढ़ते हैं सिंप्लीफाइड बुक लिस्ट के पास। तो बताओ बच्चों, आपने अपने सीनियर से सुना ही होगा कि NCERTs पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? अरे सर, NCERTs तो बच्चों के लिए होते, हम थोड़ी ना पढ़ेंगे। अच्छा, तो बबलू जी का ये कहना है। हाँ गुड्डू, तुम बताओ। सर, NCERT तो बाइबल है, ऑक्सीजन है, हमें तो कवर टू कवर पढ़ना चाहिए। देखो बच्चों, ये दोनों ही आइडियोलॉजीज से हमें दूर रहना है। हमें लेना है मिडिल पाथ। हमें सिलेक्टेड NCERTs पढ़ने हैं और फिर उन्हें स्टैंडर्ड बुक्स के साथ क्लब करके धूम मचा देनी। हमें 3 लेवल्स में पढ़ाई करनी है। लेवल 1 फाउंडेशन, इसे आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेवल 2 सेकेंडरी फ्लॉज, इफ़ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग आप इसे स्किप कर सकते हैं। और लेवल 3 द रूफ, दैट इज स्टैंडर्ड बुक्स, इसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल भी स्किप करें। अच्छा सर, अंडरस्टूड। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? बिकॉज ये आपका इंट्रोडक्शन है UPSC के लिए, मैं आपको बहुत सारे सोर्सेज बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा। याद रखिए, ये लिस्ट एक्सक्लूसिव नहीं है, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है आपको। चलिए तो देखते हैं सिंप्लीफाइड बुक लिस्ट कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट NCERTs। सबसे पहले हिस्ट्री। इसके लिए आपको क्लास 6 NCERT आ पास्ट 1, क्लास 7 आ पास्ट 2, क्लास 8 आ पास्ट 3 पार्ट 1 एंड आ पास्ट 3 पार्ट 2, क्लास 9 इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1, क्लास 10 इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2, क्लास 11 themes in world history, Class 12 Themes in Indian History Part 1, Part 2 और Part 3 ये बुक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा एक काफ़ी अंडररेटेड बट वेरी यूजफुल बुक है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पढ़ना है क्लास 11 का NCERT एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड लिविंग क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया का चैप्टर 9 और 10। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको सारे NCERTs पढ़ने हैं, राइट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, दैट इज क्लास 6, 7, 8, 9, 10, क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11 पॉलिटिकल थियोरी, क्लास 12 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको ये सारी NCERTs पढ़नी है। क्लास 9 इकोनॉमिक्स, क्लास 10 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के लिए आपको ये NCERTs पढ़नी है, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th।
11th की केमिस्ट्री का सिर्फ यूनिट 14 और 11th के बायोलॉजी का सिर्फ यूनिट 4 एंड 5। 12th केमिस्ट्री का सिर्फ यूनिट 16 और बायोलॉजी 12th का सिर्फ यूनिट 8, 9 एंड 10। एनवायरनमेंट के लिए आपने जो ज्योग्राफी बुक्स पहले पढ़ी हैं वही काफ़ी रहेंगी। उसके अलावा बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 13 टू चैप्टर 16 आपको पढ़ना है। फाइनली सोशोलॉजी के लिए आपको 6th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, 8th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, 11th अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी और 12th इंडियन सोसाइटी, ये बुक्स पढ़नी है। आपको ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मैं लिंक कर दूंगा। रही स्टैंडर्ड बुक्स की बात, उसका भी अमेज़ॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके ख़रीद सकते हैं। सर, क्या सारे बुक्स ऑर्डर में पढ़ना ज़रूरी है या क्या कुछ बुक्स हम स्किप कर सकते हैं? बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, हम 3 लेवल्स में पढ़ेंगे। कौन सी बुक कौन से लेवल पे आती है, इसका डिटेल चार्ट आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो फिज़िकल बुक्स ले आना डिफ़िकल्ट है। इसका सोल्यूशन सिंपल है। NCERTs आर अवेलेबल टू डाउनलोड फॉर फ्री ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। देयरफॉर एक एस्पिरेंट अपनी पढ़ाई इजीली स्टार्ट कर सकता है। अगेन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स हो या फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। Thank you so much for watching this video till the end. If you liked this video, please consider liking, sharing and subscribing. And in order to not miss any future updates, please press the bell icon. And for more quality education disguised as animation, keep watching Study Jones.